Hello everyone. So we will see Science lesson number 11, Cell Structure and Microorganisms of 7th standard. We have covered up till the cell portion. Now we will see about microorganisms. So what is microorganisms? Microorganisms are nothing but something which can be only seen by microscope. You cannot see these microorganisms naked. This you will only observe when you see these microorganisms under a microscope. Let's see the occurrence of microorganisms. These microorganisms are present everywhere, almost everywhere. They are present in air, they are also present in soil, they are present in food, sewage, garbage, everywhere. Even in plants and animals also you can see these microorganisms. These microorganisms are solitary. Solitary means they are single. They live singly. For example, amoeba and paramecium, these are the microorganisms which live singly. Some are the organisms which also live in colonies, and these microorganisms live on dead plants and animals. Now we will see observation and measurement of microorganisms. Have you ever seen microorganisms? You must have seen bread or bhakri which is kept for many days, which is in a moist place or kept in a dark place. If you keep bhakri or bread in a dark place for 2 to 3 days, you will observe some thread like structures on that bread or bhakri. That is nothing but a microorganism. You can see it by a magnifying glass. Again, you can see these microorganisms in muddy water or stagnant water. Stagnant means रुका हुआ पानी. रुके हुए पानी में भी हम microorganisms को देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर तुम इफ़ यू टेक दैट वाटर और तुम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, you will observe some microorganisms in that, like amoeba or paramecium. Even if अगर दही, you eat dahi, yogurt or buttermilk, if you take it and put it on a slide and observe it under a microscope, you will come to know that dahi or that buttermilk contains microorganisms. So microorganisms are present various places. The next topic that we will see is nature of microorganisms. So these microorganisms are of various types. These are of various shapes. You can see here a variety of microbes are shown here in this picture. You can see there are various types of microorganisms having different shapes, different form, different structure. So these microorganisms are of various types. In these microorganisms there are fungus, bacteria, virus. So microorganisms like fungus, these fungus grow on bread or strands of algae in ponds. These are multicellular. So the organisms like fungus, they are multicellular, but organisms like bacteria and virus, they are unicellular. They have somewhat different cellular structure from the multicellular. See, you can see a prokaryotic cell here. Okay, this is a prokaryotic cell. Now these prokaryotic cells, they do not have membrane bound organelles. Okay, they do not have membrane bound cell organelles like eukaryotic cells. These prokaryotic cells are unicellular. They don't have membrane bound organelles. They have cell wall, plasma membrane, nucleoid. You can see the nucleoid, cytoplasm, ribosomes, plasmid, flagellum, capsule. So these all are the components of a prokaryotic cell. Okay. So next we will see the growth of microorganisms. So how do these microorganisms grow? You would have ever heard that microorganisms बहुत जल्दी rapidly बढ़ते हैं.
सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. अगर उनको उनके हिसाब का फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला देन दे विल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. कुछ कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं विच नीड ऑक्सीजन टू ग्रो एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन टू. ओके. एंड सम ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. मीन्स बैड कंडीशंस में, एक्सट्रीम बैड एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. लाइक इन ओशन फ्लोर इतना ठंडा होता है बट स्टिल दे कैन सर्वाइव इन दैट आइस कोल्ड वाटर. दे कैन सर्वाइव इन पोलर रीजन्स. दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन वेरी हॉट कंडीशंस लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स. एंड दीज माइक्रो व्हाट हैपन्स इज, वो लोग सर्वाइव कर कैसे लेते हैं ऐसी कंडीशंस में, इतनी बैड कंडीशंस में? बिकॉज दे फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स. अपने ऊपर एक थिक लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, उनकी लाइफ वहीं पे पॉज हो जाती है. फिर जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होते हैं एट दैट टाइम वो अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग से बाहर आ जाते हैं एंड फिर से उनकी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छी होती है बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस. दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट. The next topic that we will see is useful microorganisms. Okay, so what are these useful microorganisms? So इसका पता लगाने के लिए एक एक्टिविटी दी है. टेक 2 pots, एक को एक मार्क करो एंड सेकेंड को B एंड फिल इट हाफ विथ सॉइल. A पॉट को सॉइल से भरो एंड B पॉट को. एंड देन जो A है, A पॉट में यू पुट गार्डन वेस्ट, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल स्टॉक्स, पेपर स्क्रैप्स एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें ए में डाल दो. एंड बी पॉट में मेटल, ग्लास, प्लास्टिक बैग्स ये सब पुट करो एंड लेट इट बी फॉर 3 to 4 days. आफ्टर सम डेज यू विल सी कि जो पॉट ए है जिसमें हमने स्क्रैप डाले थे ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, गार्डन वेस्ट, पेपर, यू विल नॉट सी दिस. वाई? बिकॉज वो चीज़ें डिकम्पोज हो गई हैं, सड़ गई हैं. बट इन पॉट बी जो ग्लास, प्लास्टिक बैग, मेटल तुमने डाला था वो वैसे का वैसा वहीं रहेगा. सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो पॉट ए है उसमें माइक्रोब्स ने गार्बेज को डिकम्पोज कर दिया है एंड इट हैज़ मेड दैट सॉइल ह्यूमस. मीन्स वो सॉइल अच्छा बेस्ट क्वालिटी का बना दिया है. ओके. एंड व्हाट इस ये क्यों हेल्पफुल है? बिकॉज जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो भी ख़त्म हो गया. दैट मीन्स आवर सराउंडिंग हैज़ बिकम क्लीन एज वेल एज वो चीज़ डिकम्पोज हो गई है. सो वो चीज़ का यूज़ हो चुका है. ओके. सो इट विल नॉट टेक अ प्लेस. उसको हमें कहीं और जाके डंप नहीं करना पड़ेगा. सिमिलरली इसी तरह से जो डोमेस्टिक वाटर हमारा जो सीवेज जाता है, लाइक जो हम वाइल वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, जो भी वाटर जाता है हमारे घर से, ओके, दैट इज सीवेज. सो दीज सीवेज, फॉर दिस सीवेज डिस्पोजल ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. यू कैन सी हियर दैट द माइक्रोब्स आर रिलीज्ड इन द सीवेज. दे हेल्प इन क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. सो जब व्हेन वी पुट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट सीवेज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें दे गेट डिकम्पोज एंड दैट वाटर रिमेन्स क्लीन. ओके. सो दैट वाटर कैन अगेन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन पर्पज. नेक्स्ट वी विल सी दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन सॉइल, they have root nodules. See, this is a root nodule. These are the root nodules. You can see here. These root nodules are present in leguminous plants. So, what does these root nodules do? These root nodules convert
atmospheric nitrogen into its compound. Okay, so the nitrogen which is present in atmosphere is converted into its compound, and these nitrogenous compounds help to increase the soil fertility. Okay, they increase the fertility of soil, जिससे हमारा जो क्रॉप का yield है वो और अच्छा आता है. And thereby the protein content of pulses grown in that soil, means उस सॉइल में जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज रूट नोड्यूल्स which are present in leguminous plants. We will see what are leguminous plants. See, these are leguminous plants. Beans, peas, all these come in leguminous plants. So these plants have root nodules which increase the protein content. Let's see about fermentation. So what is fermentation? When one type of carbon compound converts into another type of carbon compound with the help of microorganism, it is called as fermentation. Okay, जब microorganisms की वजह से एक से दूसरे में कन्वर्जन होता है कार्बन कंपाउंड्स का, then that is known as fermentation. अब इस fermentation के प्रोसेस में हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस रिलीज होते हैं. ये सब रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू वुड हैव सीन द ब्रेड डो या फिर इडली बैटर देखा होगा, दे राइज, ऐसे फूक जाते हैं. ओके, वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन. सो दिस फर्मेंटेशन इज ऑल्सो यूज टू मेक योगर्ट, दही बना सकते हैं फ्रॉम मिल्क बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन. अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और बहुत सारे एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प. नाउ वी विल सी अबाउट एंटीबायोटिक्स. ओके, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? सो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स विच डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ. पैथोजेंस मीन्स जो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होती है विच आर हार्मफुल टू अस, जिसकी वजह से हमें कोई भी डिसीज़ या बीमारी हो सकती है, दोज आर पैथोजेंस. सो इन पैथोजेंस को मारने का काम एंटीबायोटिक्स करते हैं और उनका ग्रोथ रिटार्ड कर देते हैं, मीन्स स्टॉप कर देते हैं. सो एंटीबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल माइक्रोब्स हैं. एंटीबायोटिक जिससे बना है दैट इज़ कॉल्ड पेनिसिलिन. ओके, सो पेनिसिलिन के मेडिसिन्स होते हैं. डॉक्टर हमें जब एंटीबायोटिक्स लिख के देता है, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. सो जैसे जैसे कुछ डिसीज़ेज़ होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलरा, जिसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं, ये कंट्रोल में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स. डोमेस्टिक एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक्स मिक्स करके उनके खाने में दिया जाता है अगर डोमेस्टिक एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो. प्लांट डिसीजेस कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स. सो एंटीबायोटिक्स आर रियली क्यूरेबल, बट अगर हम एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे देन दे विल हार्म अस. सो जैसा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उतना ही एंटीबायोटिक्स, उतनी ही मेडिसिन हमें लेनी चाहिए. खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, खुद से कॉमन कोल्ड या फीवर को ट्रीट नहीं करना चाहिए. यू शुड ओनली फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स. नेक्स्ट वी विल सी दैट वैक्सीन. आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से सब जानते हैं व्हाट इज़ वैक्सीन. ओके, सो वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज. These vaccines are prepared from microbes. Microbes means microorganisms. Vaccines क्या करते हैं, तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. इम्यूनिटी मीन्स तुम्हारे बॉडी की जो अटैक करने की कैपेबिलिटी होती है, तुम्हारा बॉडी जो फॉरेन मटेरियल्स को, पैथोजेंस को अटैक करता है, दैट इज़ इम्यूनिटी. सो वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से यू आर सेफ फ्रॉम डिसीजेज. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन टैनिंग ऑफ स्किन. रोप्स एंड स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. कुछ माइक्रोब्स ऑयल में यूज़ होते हैं फॉर हेयर ग्रोथ. सम माइक्रोब्स आर यूज टू क्लियर अ लेयर ऑफ ऑयल. जब ओशन में कभी कभी ऑयल ले जाते टाइम ऑयल स्पिल हो जाता है वाटर में, तो उस वाटर को क्लीन करना, वहाँ से उस ऑयल को क्लीन करना is helpful because of microorganisms.
एंड यू इवन फार्म वेस्ट, जो फार्म का जो वेस्ट निकलता है, ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस, इनफैक्ट वेट गार्बेज ऑल्सो इज कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज़ यूज इन बायोगैस प्लांट, जिसमें बायोगैस एंड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स एंड एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो लिविंग वर्ल्ड के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत यूजफुल हैं, बट यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म करते हैं टू द लिविंग वर्ल्ड. लुक, हैव यू एवर सीन कि हम जार्स में पिकल्स, जैम्स रखते हैं. सो हम जैम्स रखते हैं. अब इफ़ यू कीप द बॉटल ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू विल सी अ राउंड लेयर ऑफ वाइट स्कम और ब्लैक पार्टिकल्स. वाइटिश या ब्लैकिश लेयर दिखेगी. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने हमारा फूड, जैम या जेली और पिकल ख़राब कर दिया है. इनफैक्ट समर सीजन में इफ़ यू कीप मिल्क फॉर अ मोर टाइम आउटसाइड, इट गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली बिकॉज मॉइस्ट सरफेस पे फंगस इमीडिएटली ग्रो होता है एंड हमारे फूड मटेरियल को ख़राब कर देता है. सो दीज आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हार्म अस. Now we will see pathogens, disease producing microorganisms. Pathogens क्या होते हैं? Disease produce करते हैं. So these are harmful microorganisms. Pathogens water bodies में present होते हैं जो contaminated होते हैं, ख़राब होते हैं and uncovered food पे होते हैं, जिस पे हाउस फ्लाइज बैठती हैं. इसलिए कहा जाता है that you should not eat uncovered food. So because it causes illness. सो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस हो सकते हैं लाइक टाइफॉइड, कॉलरा, हिपेटाइटिस, ये सब हो सकता है. अब ये पैथोजेंस स्प्रेड कैसे होते हैं? दीज पैथोजेंस स्प्रेड बिकॉज दे रिलीज इन एयर एंड दे रिलीज बिकॉज ऑफ स्नीजिंग और कफिंग. मीन्स छींकने और खांसने से हमारे बॉडी के अंदर के पैथोजेंस कम आउटसाइड इन टू द एयर एंड इफ़ दिस एयर इज़ इनहेल्ड बाय अदर पर्सन, अगर किसी हेल्दी पर्सन ने इस एयर को इनहेल कर लिया तो दीज पैथोजेंस में एंटर दैट पर्सन और वो पर्सन फिर इल हो जाएगा. उसे कोई ना कोई डिसीज़ हो सकती है लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा. सो वी शुड बी केयरफुल. मुंह पे हाथ रख के स्नीज या कफ करना चाहिए. ओके. एंड पैथोजेंस में वन पैथोजन इज़ मॉस्कीटो. मॉस्कीटो गार्बेज, ड्रेन्स, स्टैगनेंट वाटर मीन्स रुके हुए पानी में रहते हैं एंड दे कॉज सीवियर डिसीजेज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, जीका फीवर, एलिफेंटाइसिस एंड दिस कॉजेज बिकॉज ऑफ बाइट ऑफ फीमेल मॉस्कीटो. सो फीमेल मॉस्कीटो अगर बाइट कर ली देन देर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमें ये सारी डिसीजेज हो सकती हैं.